Welcome to our YouTube channel Khiteshwar Childcare Academy. In today's session, we are going to start a chapter related to class 10th from the book Resolution. And the chapter's name is The Thief's Story, which was written by Ruskin Bond. Let's see. In the beginning, we are going to discuss some of the glossary, or you can tell hard words from the chapter. Let's have a look on the glossary and then we are going to start our reading. Approached, came near. Flattery, insincere praise. Praise, insincere praise means just praising someone for benefits. Modestly, humbly. Grunting, uttering a harsh sound, making a very difficult sound like harsh karkash आवाज. Gasping, catching breath with open mouth to get breathing with open mouth. Slip, to move slowly. Shy, breathe a deep breath. Taking a deep breath after somebody's without noticing someone or doing something like that. Stuffed, filled. Arouse, to excite, to make someone excited for doing something. Curious, eager to learn. Persons having an curiousness for knowing different types of things, to know what is happening and what is not happening. In Hindi, you can call it jigyasa. Vagrants, persons who have no settled home or job. Vagrants are those persons who just roam around. They do not have a proper job. They do not have a proper settlement of home. Undetected, not discovered. To get to, not to know by anybody. To do something without knowing anybody's knowledge. One more thing, to speak English fluently and to work on your English, it is very important to think in English. If you are going to search the Hindi meanings of these words, there is no need. You have to search English meanings. You have to know what it means in English, not in Hindi. Okay, it was a little tip. And then let's start with our chapter. Today's chapter, The Thief's Story, Ruskin Bond. Very first, I am going to show you the book. This is your class 10 resolution book. And we are going to start this chapter with it. Before moving towards the chapter, we are going to study about the author. Who is the author and how he came to write this chapter. Okay. Ruskin Bond is an Indian author of British descent. Ruskin Bond एक Indian author है जो British descent के हैं. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature. जो Indian Council है जो child education से ज़्यादा शिक्षा को प्रेरित करते हैं या इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं बच्चों के लिए, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा है क्योंकि इन्होंने चिल्ड्रन से रिलेटेड लिटरेचर जो है बहुत ज़्यादा लिखा है. He received the साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992. 1992 में इनको इनके वर्क्स के लिए जो भी इन्होंने काम किए हैं उन कामों के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया. He was also awarded Padma Shri in 1999 और 1999 के अंदर इंडिया का एक और बहुत ही गौरवान्वित करने वाला जो प्राइज है वो है पद्म श्री. वो उनको दिया गया. पद्म भूषण इन 2014 और अभी रिसेंट ईयर्स के अंदर 2014 के अंदर इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया. About the story. This story is a simple plot with an important message. ये जो स्टोरी है बहुत सिंपल सा प्लॉट है. प्लॉट मीन्स a draft. You can call it a draft, like making a story of situation. बहुत सिंपल सा इसका ड्राफ्ट है, प्लॉट है. A young boy हरि सिंह came to live with अनिल. एक यंग लड़का जिसका नाम था हरि सिंह जो अनिल नाम के व्यक्ति के साथ रहने के लिए आता है. In hope of making a theft. अब हरि सिंह की क्या उम्मीद थी कि वो अनिल को लूटेगा, चोरी करेगा, अनिल के घर पे थेफ्ट करेगा. Being a good fellow, Anil wants to teach
Hari Singh how to read and write. Anil was a very good person and he wants to teach Hari Singh to read and to write. Gradually, Anil develops trust in Hari Singh. और ऐसे ऐसे धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया ग्रेजुअली अनिल का जो ट्रस्ट था हरी सिंह पे बहुत स्ट्रांग हो गया. आफ्टर स्टीलिंग मनी फ्रॉम अनिल, जब हरी सिंह ने जो अनिल है उससे जब पैसा चुरा लिया, हरी सिंह ट्राइज टू गो अवे फॉरएवर बट सम इनर वॉइस स्टॉप्स हिम फ्रॉम डूइंग सो. और जब हरी सिंह ने अनिल का पैसा चुराया, उसकी कुछ संपत्ति, उसकी जो सैलरी थी वो जब चुराई, उससे थेफ्ट किया, he wanted to run away from him forever. But some inner voice, you can call it like ज़मीन किसी का, उसने उसे रोका कि आप ऐसा नहीं करें. Thus Anil, who was diverted from the right path, realized his mistake. Thus Anil, who was diverted from the right path, realized his mistake. It's not Anil, it is Hari Singh. Thus Hari Singh, who was diverted from the right path, realized his mistake. Let's move on to the chapter. Page number 1, Thief's Story. I will read out for you slowly and I will explain you all the paragraphs with more interesting nature. I was still a thief when I met Anil, and though I was only 15, I was an experienced and fairly successful hand. The chapter is being narrated by Hari Singh himself. I was a still thief. मैं तब भी एक thief था जब मैं अनिल से पहली बार मिला. मैं 15 वर्ष का था, मगर मुझे मेरे कार्य में महारत हासिल थी. मैं काफ़ी एक्सपीरियंस था और बहुत शार्प तरीके से चुरा लेता था चीज़ें लोगों की. Anil was watching a wrestling match when I approached him. Anil was watching a wrestling match. Anil जो है एक wrestling का कुश्ती देख रहा था जब मैंने उसे अप्रोच किया. अप्रोच मीन्स वो जब उसके नज़दीक आया. He came near to him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. डिस्क्रिप्शन दे रहा है अनिल का हरी सिंह कि वो एक 25 इयर्स का व्यक्ति था, टॉल, लीन, पतला, फेलो, एंड ही लुक्ड इजी गोइंग. ऐसा लग रहा था इसको मैं आसानी से बेवकूफ बना सकता हूँ और बहुत सिंपल है मेरे पर्पस के लिए, मेरे चोरी के काम के लिए. आई वॉज श्योर आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. हरी सिंह कहता है कि मैं बहुत श्योर था अपने आप में, बिल्कुल श्योर था मैं कि इस यंग पर्सन का जो कॉन्फिडेंस है मैं आसानी से जीत लूँगा, आसानी से इसको यकीन दिला दूंगा और ये मेरे ऊपर विश्वास करने लगेगा. यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ. तुम, हरी सिंह अनिल को कह रहा है कि तुम अपने आप में एक रेसलर लगते हो मुझे. आई सेड, मैंने कहा, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. थोड़ी सी जो मक्खनबाजी है वो क्या करती है, दोस्ती को बढ़ाने में, दोस्ती करने में आसानी बनाती है, आसान बनाती है दोस्तों को बनाने में. सो डू यू, ही रिप्लाइड. सामने से अनिल ने भी कहा, तुम भी लगते हो. विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज दैट टाइम आई वॉज रादर थिंग. मगर उस समय जब ये मैंने सुना उससे तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा. पुट मी ऑफ यानी मुझे पीछे हटना पड़ा हल्का सा, सोचो, क्योंकि उस समय मैं तो बहुत थिन, पतला सा था, दुबला सा था. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. मगर फिर भी मैंने बहुत ही हम्बल तरीके से, बहुत ही सहज भाव से कहा कि हाँ, थोड़ी बहुत कुश्ती मैं कर लेता हूँ. I do wrestle a bit. What's your name? क्या नाम है? हरी सिंह. I lied. जब अनिल ने उसको पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने झूठ बोला, हरी सिंह. I took a new name every month. हर महीने मैं एक नया नाम रखता हूँ. That kept me ahead of the police and my former employees. इससे क्या होता है नया नाम रखने से,
कि वो 2 कदम आगे रहता है पुलिस से और उन लोगों से जिन्होंने उसको पहले एम्प्लॉय किया था। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. ये जनरल इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने कुछ बातें कही टॉक अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स, जो ऑयल रेसलर्स है उनके बारे में, जो ग्रंट कर रहे थे, जो लोग बहुत मेहनत से एक दूसरे को उठा रहे थे, आवाजें निकाल रहे थे और वापस गिरा रहे थे। मेरे पास और कुछ कहने को था नहीं इस बारे में। अनिल वॉक गए और अनिल चलने लगा। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं भी उनको फॉलो करने लगा कैजुअली, उनके पीछे पीछे चल पड़ा। हेलो अगेन, उसने कहा हेलो अगेन, फिर से। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैंने उसे अपनी सबसे अपीलिंग स्माइल, जिससे कि वो इजीली मेरे पे विश्वास करने लगे, इनोसेंट से जो स्माइल है वो उसकी तरफ दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, बट आई कांट पे यू, मगर अनिल ने कहा मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया, शायद अब मैं इसके लिए काम अगर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसने मना कर दिया मैं पैसे नहीं दे सकता, और पैसे के बिना कौन काम करेगा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन, शायद मैंने अपने व्यक्ति को, शिकार को, अपने प्रे को मिसजज कर दिया। आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? तो सामने से जवाब आया, पूछा सवाल आया, कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला कि हाँ मैं खाना पका सकता हूँ। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अनिल कहता है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। He took me to his room over the sweet shop, वो मुझे अपने रूम पे लेके गया, जो रूम उसका स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान के ऊपर था, एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और उसने मुझे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट, मगर जो खाना मैंने उस रात्रि को बनाया था, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो बहुत बुरा बनाया था, क्योंकि उसे खाना बनाना आता ही नहीं था, उसने झूठ बोला था और वो बहुत बुरा खाना बनाया। बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, बिकॉज अनिल ने क्या किया, वो खाना स्ट्रे डॉग्स, आवारा पशुओं, आवारा जो कुत्ते होते हैं गली के, उनको दिए। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे कहा निकलो यहाँ से। टू बी ऑफ इज अ फ्रेजल वर्ब, और ऑफ का यहाँ पर टू बी ऑफ का मतलब फ्रेजल वर्ब है, और इसका मतलब वो जाओ, यहाँ से निकल जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, मगर मैं फिर भी उधर ही घूमता रहा आसपास, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपने इनोसेंट स्माइल के साथ बार बार, एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो अपने आप को रोक नहीं पाया हंसने से, और वो हंसने लगे मुझे देख। लेटर ही पैटेड मी ऑन हेड एंड सेड, बाद में उसने मेरे सर पे थपथपाया, ऐसे थपकी लगाई और कहा, नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूँ। He also taught me to write my name and sing, उसने मुझसे कहा कि write my name, वो मुझे अपना नाम लिखना सिखाएगा, and said he would soon teach me to write whole sentences, और जल्द ही वो मुझे बहुत सारे sentences भी लिखना सिखाएगा, and to add numbers, और numbers को कैसे add किया जाता है वो भी बताएगा। I was grateful, मैं बहुत शुक्रमंद था उसका, बहुत शुक्रगुजार था उसका। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. मैं जानता था कि अगर एक बार एक एजुकेटेड, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह मैं लिख पाऊंगा, समझ पाऊंगा, तो मैं अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। I can get a lot of things in my life, and I could achieve anything what I want. There is no limit to it. Because an educated person can do anything he wanted. It was quite pleasant working for Anil. अनिल के लिए काम करना बड़ा आरामदायक, सुखदायक था, प्लेजेंट था।
I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies. सुबह सुबह मैं चाय बनाता था और फिर पूरा दिन बाजार में दिन का जो खरीदारी होती है सामान की वो खरीदने में लगता था. Usually making a profit of about ₹1 a day. Usually जो भी पैसा मुझे मिलता था अनिल के द्वारा उसमें से ₹1 दिन का मैं बचा लेता था, चुपके से प्रॉफिट बना लेता अपना. I think he knew I made a little money this way, but it did not seem to mind. I think मुझे लगता है कि वो जानता था कि शायद मैं ऐसे ही कुछ पैसा बचा रहा हूँ ₹1 करके, मगर उसको ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने उस चीज़ को माइंड नहीं किया. Anil made money by fits and starts. Anil made money by fits and starts. अनिल का कोई प्रॉपर बिजनेस या प्रॉपर कोई जॉब नहीं था, वो कभी कुछ करता था कभी कुछ करता था. फिक्स एंड स्टार्ट्स इज इन इडियम, ठीक है, जिसका मतलब फिक्स जॉब नहीं होता. डूइंग समथिंग एंड टू अर्न मनी. ही वुड बोरो 1 week, एक हफ्ता वो बोरो करता किसी से, उधार लेता, एंड लेंड द नेक्स्ट और नेक्स्ट मंथ वापस लौटा देता या लेंड करता. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक. हमेशा वो चिंता बनी रहती थी अपने अगले पेमेंट की, चेक की. बट एज सून एज इट अराइव्ड, मगर जैसे ही चेक आता था he would go out and celebrate. वो बाहर जाता था, सेलिब्रेट करता था, बहुत ज़्यादा आनंद प्राप्त करता था. It seems he wrote for magazines. ऐसा लगता था कि वो एक मैगजीन के लिए लिखा करता था. A pure way to live, एक अजीब तरीका है जिंदगी को जीने का. One evening he came home with small bundle of notes. एक दिन इवनिंग में, शाम के समय वो घर लौट के आया जिसके उसके हाथ में एक नोटों का बंडल था. Saying he had just sold a book to a publisher. और ऐसा कह रहा था कि उसने एक किताब जो है पब्लिशर को बेची. At night I saw him tuck the money under the mattress. रात्रि में मैंने देखा कि उसने जो पैसों की जो बंडल है उसको अपने मैट्रेस के नीचे से नीचे घुसाया है, स्लिप के अंदर. I had been working for Anil for almost a month. अनिल के लिए मैं 1 महीने से काम कर रहा हूँ लगातार. And apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. And apart from cheating on the shopping, यानी जब वो शॉपिंग के लिए जाता था, डेज सप्लाईज लाता था, जो उसमें वो चीट करता था ₹1-2 के. उसके अलावा उसका जो बिजनेस है, जो उसका काम है हरीसिंह का, चोरी का, उसने उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं किया है. I had every opportunity for doing so. और हर बार से ऐसा अपॉर्चुनिटी मौका मिला था ऐसा करने का. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. अनिल ने मुझे उस रूम की एक चाबी दे रखी थी और मैं जब चाहूँ आ जा सकता था, मेरी मर्जी के हिसाब से, मेरी खुद की चॉइस से. He was the most trusting person I had ever met. अपने पूरे लाइफ में, अभी तक की लाइफ में, हरी सिंह कहता है कि ये व्यक्ति जो था बहुत ज़्यादा ट्रस्टिंग था, जिसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट, विश्वास था मेरे ऊपर. ऐसे व्यक्ति से मैं अपने पूरे अभी तक की लाइफ में पहली बार मिला. एंड दैट इज व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रॉब. और यही कारण था कि इसको लूटना, इसके सामान को चोरी करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट यानी मुश्किल है. इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन. किसी लालची व्यक्ति को लूटना बहुत आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता है, वो लालची है और वो अफोर्ड कर सकता है इस चीज़ को. बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन. लेकिन एक केयरलेस व्यक्ति जिसको कोई फिक्र नहीं है, बेफिक्र व्यक्ति को लूटना काफ़ी मुश्किल है. समटाइम ही डजंट इवन नोटिस. कभी कभी तो उसे पता ही नहीं लगता है कि उसका कुछ सामान चोरी हो गया, वो इतना केयरलेस होता है. He has been robbed and that takes all the pleasure out of it. और जब व्यक्ति को पता ही नहीं लगता है कि वो लुट गया है, उसका सामान चोरी हो गया या उसके पैसे चोरी हो गए हैं, तो उस काम में, उस चोरी के काम में कोई मज़ा नहीं आता, उसको मज़ा नहीं आता है, उसको अच्छा नहीं लगता है कि क्या हो गया, व्हाट इज दिस, मैंने इसकी चोरी करी और उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसे पता ही नहीं चला. अगर किसी काम को किया जाए और उस काम को सामने वाले को पता ना चले, तो there is nothing in this work, it's idle.
Well, it's time I did some real work. हर सिंह सोचता है कि हाँ अब समय आ गया है कि कुछ रियल काम किया जाए। I told myself, मैंने अपने आप से कहा, I am out of practice. Out of practice यानी काफी समय से चोरी नहीं किए तो शायद मैं काम बेहतर कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, प्रैक्टिस खत्म हो गई। And if I don't take the money, और अगर मैं ये पैसा नहीं लूँगा, he will only waste it on his friends. और अगर ये पैसा मैं नहीं लूँगा तो वो क्या करेगा? इस पैसे को जाके अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन में वेस्ट कर देगा। After all, he doesn't even pay me. और उसके अलावा वो मुझे पे भी तो कहाँ करता है, पैसा भी तो नहीं देता। हरि सिंह जो है अपने आप में ये बातें सोच रहा है और अपने काम को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि वो इतने ट्रस्टिंग पर्सन क्यों लूँगा, द रीजन बिहाइंड इट कि वो मुझे पे नहीं कर रहा है, वो पैसा वेस्ट करेगा, सो एंड सो, अपने आप जस्टिफाई कर रहा है। Anil was asleep. Anil सोया हुआ था। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. balcony में से एक रोशनी जो है चांद की, वो बालकनी में गिर रही थी और बेड पे भी जा रही थी। I sat up on the floor. मैं फ्लोर पे बैठ गया। Considering the situation को कंसिडर कर रहा था। If I took the money, अगर मैं पैसा लेता हूँ, I could catch the 10:30 express to लखनऊ। अभी मैं पैसा ले लेता हूँ तो रात्रि 10:30 बजे की जो लखनऊ जाने वाली जो ट्रेन है, मैं उसको कैच कर सकता हूँ, जाके पकड़ सकता हूँ, उसमें चढ़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अपनी ब्लैंकेट से धीरे धीरे बाहर निकल के आई क्रैप्ड अप टू द बेड, यानी घुटनों के बल वो बेड तक पहुंचा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बहुत शांति से सोया हुआ। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन। उसका चेहरा जो है बहुत ही क्लियर था, अनलाइन, कुछ भी शिकन नहीं थी उसके, चिंता नहीं थी उसके चेहरे पर, बहुत ही साफ और प्लेन चेहरे पे सोया। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। उसके चेहरे से ज़्यादा मार्क्स तो मुझे मेरे चेहरे पे नजर आ रहे, लग रहे। दो माइंड वो मोस्टली स्कार्स, लेकिन जो मेरे चेहरे पे जो मार्क्स थे वो मोस्टली क्या थे? स्कार्स थे, चोट के, घाव के निशान थे। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेसेस। मेरा हाथ मैट्रेसेस के अंदर गया। सर्चिंग फॉर नोट्स, नोट को सर्च कर रहा, पैसों को सर्च कर रहा। When I found them, और जब मुझे वो पैसा मिला, I drew them out without a sound, और मैं धीरे धीरे उनको बाहर निकालने लगा बिना कोई आवाज किए। Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. अनिल का चेहरा उस तरफ था और इसका हाथ इस तरफ था। जैसे ही अनिल ने करवट ली, उसकी गहरी लंबी सांस जो है वो उसके हाथों पर लगी। I was startled and quickly crawled out of the room. मैं घबरा गया, startled यानी घबरा जाना, चौंक गया, और धीरे धीरे फटाफट क्विकली तेजी से मैं क्या हुआ, रूम से क्रॉल करके बाहर चला गया, निकल गया। When I was on the road, जब मैं रोड पे था, I began to run. जैसे ही मैं रोड पे पहुंचा, मैं भागने लगा। I had the notes at my waist. सारे नोट जो है मेरे वेस्ट के ऊपर थे। Had there by the string of my pajama. जो उसका पजामा था, उसकी पजामे की जो स्ट्रिंग्स, जो नाड़ा होता है, उससे उसने टाई करके और अपनी वेस्ट में रख लिया। I slowed down to walk and counted the notes. मैं रुका, नोट्स को निकाला, काउंट किया। 600 rupees in 50s, यानी 50-50 के नोट्स थे और 600 रुपए कितने? 600। I could live like an oil-rich Arab for a week or two. वो कहता है कितने पैसे में तो मैं एक रिच, बहुत ज़्यादा रिच जो अरब के लोग होते हैं जिनके पास ऑयल के वेल्स हैं, उनकी तरह ज़िंदगी जी सकता हूँ, एटलीस्ट 1 या 2 हफ्तों के लिए। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पहुँचा तो मैं टिकट ऑफिस पर रुका ही नहीं। I had never bought a ticket in my life. मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी टिकट नहीं खरीदी, और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, चोर था, ठीक था, तो वो टिकट क्यों खरीदेगा? But dash straight to the platform, और सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ गया। The Lucknow Express was just moving out. लखनऊ एक्सप्रेस जो है वो निकल रही थी, प्लेटफॉर्म को छोड़ रही थी।
The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages. ट्रेन अभी तक स्पीड उसने नहीं गेन की थी, वो धीरे थी और मैं इजीली किसी ना किसी कैरियज में जंप करके चढ़ सकता था. बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं झिझका, हेजिटेट किया मैंने, थोड़ी सी झिझक मुझ में आई. फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, पता नहीं किस रीजन की वजह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं समझा नहीं सकता. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट इट. और जो मौका था मेरे पास यहाँ से निकल जाने का, भाग जाने का, वो निकल गया हाथ से. When the train had gone, जब ट्रेन जा चुकी थी, I found myself standing alone on the deserted platform. मैं अपने आप को एक डेजर्टेड, सुनसान, डेजर्ट कैसा होता है? सुनसान, और डेजर्ट से ही डेजर्टेड वर्ड बना है. डेजर्टेड प्लेटफॉर्म के ऊपर सुनसान रात में अकेला अपने आप को पाता और कोई नहीं. I had no idea where to spend the night. मुझे कोई आइडिया नहीं कि रात कहाँ बिताऊंगा. I had no friends. मेरे कोई मित्र नहीं, कोई दोस्त नहीं. Believing that friends were more trouble than help. क्योंकि मेरा ऐसा मानना था, ये हरी सिंह कह रहा है सारी बात, मेरा ऐसा मानना था कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो एक ट्रबल है, मुसीबत है, ना कि कोई मदद. हेल्प से ज़्यादा वो लोग मुसीबत है. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और मैं लोगों को ज़्यादा क्यूरियस नहीं करना चाहता था किसी होटल में रहकर, जो स्टेशन के नज़दीक में होटल्स है वहाँ पर रुक के रात के लिए लोगों को ये शक के घेरे में अपने आप को नहीं डालना चाहता था, क्यूरियस नहीं करना चाहता था. The only person I knew really well was the man I had found. सिर्फ वो व्यक्ति जिसको मैं जानता हूँ अच्छे से, वो सिर्फ वही व्यक्ति था जिसको मैंने अभी अभी लूटा है, जिसके यहाँ पर मैंने चोरी की है. लीविंग द स्टेशन, स्टेशन छोड़ते हुए, आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार. बाजार से धीरे 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 मैं चलने लगा. इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, मेरे एक छोटे से करियर थीफ के रूप में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेसेस. मैंने लोगों के चेहरे पढ़े when they had lost their goods. जब लोग अपना कुछ खो देते हैं या उनका चोरी हो जाता है तो उनके रिएक्शंस क्या होते हैं, उनके चेहरों से पता लगता है. The greedy man showed fear. जो greedy man होता है, जो लालची व्यक्ति होता है, उसको डर बना रहता है कि ये तो चोरी हो गई और चीज़ें ना हो जाए. The rich man showed anger. जो रिच होता है, जो पैसे वाला अमीर लोग होते हैं, वो गुस्सा दिखाते हैं कि मेरी चीज़ किसने कैसे चुरा ली, किसकी हिम्मत हो गई. The poorest man showed acceptance. जो गरीब व्यक्ति होता है, जो पुअर पर्सन होता है, वो एक्सेप्टेंस दिखाता है कि आखिर वो क्या कर सकता है. हो गई चोरी तो होगी बस, अब वो कुछ नहीं कर सकता उसमें. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, मगर मैं जानता था अनिल का चेहरा. When he discovered the theft, would show only a touch of sadness. और जब अनिल को ये पता लगेगा कि उसका कुछ सामान, उसके कुछ पैसे चोरी हो गए, तो वो बहुत ज़्यादा सैड होगा, दुखी होगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसा खो जाने की वजह से नहीं, पैसे के जाने की वजह से नहीं है, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. लेकिन जो ट्रस्ट था उसका, जो उसने विश्वास किया किसी पर, उस विश्वास के टूटने का दुख उसे बहुत ज़्यादा. आई फाउंड माई सेल्फ इन मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच. मैं अपने आप को एक मैदान में पाता हूँ और वहाँ पर एक बेंच पे बैठ जाता हूँ. द नाइट वॉज चिल. रात्रि जो थी ठंडी थी, कड़कड़ाहट वाली थी, ठंड थी हल्की. इट वॉज अर्ली नवंबर की शुरुआत था. एंड अ लिटिल ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट. मैं ऑलरेडी डिस्कम्फर्टेड था और ड्रिजल, हल्की बूंदाबांदी की वजह से और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो गया. सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवी. और जल्द ही बहुत तेजी से बारिश होने लगी. माई शर्ट एंड पजामा stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. और एक cold wind, एक ठंडी हवा का झोंका जो है वो मेरे चेहरे से होता हुआ निकला. I went back to bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. मैं वापस बाजार गया and sat down in the shelter of clock tower.
जो क्लॉक टावर है, जो घंटा घर है, उसके शेल्टर में बैठ गए। द क्लॉक शोड मिडनाइट, क्लॉक में मिडनाइट दिख रहा था, मध्य रात्रि। आई फेल्ट फॉर नोट्स, मैंने नोट्स देखे कि नोट्स कहाँ पर है, महसूस किया। दे वर डैम्प फ्रॉम रेन की वजह से वो गीले हो चुके थे, उनमें नमी आ चुकी थी, डैम्प हो चुकी थी। Anil's money. In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. अनिल का पैसा, हो सकता है कि सुबह वो मुझे 2 या 3 रुपए देता सिनेमा जाने के लिए, मगर देखो अब सारा पैसा मेरे पास है। I could not cook his meals. अब मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता। Run to the bazaar or learn to write whole sentence. ना मैं बाजार जा सकता उसके लिए सामान लेने के लिए, सप्लाईज लाने के लिए, और ना ही मैं सेंटेंसेस को लिखना और पढ़ना सीख सकता। I hurried back to the room feeling very nervous. मैं जल्दी वापस रूम की तरफ बढ़ा, बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। For it is much easier to steal something than to return it undetected. क्योंकि चोरी करना आसान है, किसी की चीज़ को ले लेना आसान है, मगर बिना उसे पता लगे उस चीज़ को वापस रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। I had forgotten about them in it. Sorry, we have missed a paragraph. I had forgotten about them in the excitement of the theft. थेफ्ट के एक्साइटमेंट में मैं तो भूल ही गया था। होल सेंटेंसेस, पूरा वाक्य। I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. मैं जानता हूँ कि अगर मैं लिखना या पढ़ना सीख गया तो हो सकता है कुछ सैकड़ों पैसों से ज़्यादा पैसा मैं कमा सकता हूँ। It was a simple matter to steal. चुरा लेना एक आसान सी बात है। And sometimes just as simple to recall. और कभी-कभी पकड़े जाना भी उतना ही आसान होता है। But to be really a big man, मगर एक बड़ा आदमी बनने के लिए, a clever and respected person, एक सम्माननीय और चतुर व्यक्ति बनने के लिए, was something else is needed. कुछ और चाहिए। I should go back to Anil. मुझे वापस अनिल के पास लौटना चाहिए। I told myself, मैंने अपने आप से कहा, if only to learn to read and write. सिर्फ सीखने के लिए कि किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से वाक्यों को पढ़ा जाता है। I hurried back to the room feeling very nervous. मैं बहुत नर्वसली रूम की तरफ बढ़ा। For it's much easier to steal something than to return it undetected. किसी भी चीज़ को चुरा लेना आसान होता है, मगर बिना उसे पता लगे उस चीज़ को रखना मुश्किल होता है। I opened the door quietly, then stood in the doorway. मैं धीरे से दरवाज़ा खोला और डोरवे में खड़ा था। In clouded moonlight, और उस मूनलाइट के अंदर क्लाउड से भरा हुआ था, और जो मूनलाइट थी उसके अंदर। Anil was still asleep. अनिल अभी भी सोया हुआ था। I crept to the head of the bed. मैं धीरे-धीरे बेड के नज़दीक पहुंचा, जो सरहाना है बेड को वहाँ पर। And my hand came up with notes. और मेरे हाथों में जो नोट्स थे वो। I felt his breath on my hand. जब मैं वापस रख रहा था तो उसकी सांसें जो है मेरे को टच कर रही थी, मैं उसको फील कर पा रहा था। I remained still for a minute. 1 मिनट के लिए मैं वैसे ही था। Then my hand found the edge of mattress and slipped under it with the notes. फिर जो एज है मैट्रेस की, मेरा हाथ वहाँ पहुँचा और मैंने नोट्स को अंदर स्लिप कर दिया, अंदर डाल दिया। I awoke late next morning. अगली सुबह मैं लेट उठा to find that Anil had already made the tea. अब देखता क्या कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बना दी। He stretched out his hand towards me. उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। There was a 50 rupee note between his fingers. उसके फिंगर्स के बीच में एक 50 रुपए का नोट था। My heart sank. मैं घबरा गया। I thought I had been discovered. मुझे लगा कि शायद मैं पकड़ा गया। अनिल को पता लग गया। I made some money yesterday. He explained. अनिल ने एक्सप्लेन किया कि कल मैंने कुछ पैसा बनाया था। Now you will be paid regularly. अब तुम्हें रोज क्या मिलेगी? तुम्हारी तनख्वाह, तुम्हारी सैलरी मिलेगी। My spirit rose. सांस में सांस आई, मुझे आराम मिला। But when I took the note, जब मैंने नोट को हाथ लगाया, I saw it was still wet from the night's rain.
मैंने महसूस किया कि नोट जो था वो अभी भी रात्रि की बरसात से गीला था, डैम्पनेस उसमें अभी भी थी। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस। अनिल ने कहा कि आज हम लोग वाक्य लिखना शुरुआत करेंगे कि किस तरीके से वाक्य को लिखा जाता है, उसकी शुरुआत करेंगे। He knew, but neither his lips nor his eyes saw. वो जानता था कि मैंने रात को चोरी की है और ऐसा वापस रखा है, मगर ना उसकी आंखों से और ना उसके होठों ने कुछ कहा। I smiled at Anil in the most appealing way, and the smile came by itself without any effort. I smiled at Anil. मैं अनिल की तरफ मुस्कुराया और बहुत ही अपीलिंग और इनोसेंट वे से, एंड स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और फिर से सामने से ही रिप्लाई में भी स्माइल अनिल के थ्रू आई विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी एफर्ट। दिस वाज आवर चैप्टर अबाउट द thief. A thief who tried to do something, but people can change. If you trust somebody, if you give your affection to somebody, if you care for others, you can change anybody on this earth. Those people who are on wrong paths, try to be normal with them, try to give them comfort they needed, and they will change. The chapter says this thing. This is the message given by Ruskin Bond, to never treat a wrong person, a person who is doing wrong things. Let him give chance to rediscover himself and to come on the right path and to work and to become a good person. This was all about your chapter. Now I hope you have got this chapter properly. Find out its question, answers, and just PDF the answers to us on our channel, Shri Keteshwar and Channel.